सब देखने को मिलेगा. It was like totally opposite जो मैंने सोचा था. I thought कि just मैं इतनी सी ही डिज़ाइनर रहूँगी, but I believe कि after that ये सब मुझे इतना प्यार देने वाले हैं and for God grace वो मुझे bless करने वाले हैं ताकि मैं आगे भी ऐसे ही बहुत सारी ब्यूटी पेजेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकूं. Thank you. Thank you so much, and I request Mr. and Mrs. Panchal to speak to our contestants, our sponsors, our jury members, and our lovely audience. Come here and grace this occasion. Thank you, sir. Thank you very much. I can say in Miss and Mrs. Apsara India Season 3, all my contestants are really beautiful. This pageant is celebration of womanhood. And I can say all my Apsaras are really beautiful from in-out, and this not only the outer beauty they have, but the 3 days they are under observations. And
first expression is wow. It just feels great. हमको मालूम नहीं था कि हमारे नसीब में आएगा एक दिन, लेकिन हमने पा लिया। बहुत खुशी की बात है। It was my dream and it came true. I'm really thankful to God that the crown is there on the head and I really touched the crown. I'm really thankful to my mom because she inspired me to participate in this. मैं इतनी आज खुश हूँ कि जिन्होंने भी मेरे को आज सपोर्ट किया है, उनका आशीर्वाद मेरे सर पे रहा है, इसीलिए मैं उनको धन्यवाद कहूँगी दिल से और मन से भी। It was not just me that I'm here, it's my friends, my family, everybody's support was there, otherwise this wouldn't have been possible. So yes, this trophy doesn't just belong to me, it belongs to them also. We all are the winners. सवाल है, आज तो आप अप्सरा बन गई, आगे इससे और ज़्यादा बड़ी उड़ान क्या होगी आपके अंदाज में, क्या चाहिए? अगर नसीब में होगी तो इसकी बड़ी उड़ान भी हम पार कर लेंगे। Yeah, I'm associated with the NGO, as I see it. So I just want to spread little more wings and want to work for the NGO, for the underprivileged children also. So I just hope that I can do well. I would like to make girls like take a step and go ahead for this kind of pageants and sure increase your confidence. यकीन था कि आप मतलब ताज मिलने वाले हैं? यकीन नहीं था, विश थी एक दिन मिले हमको, लेकिन मिल गई। Always dreamt of this crown, but of course we can't predict the future. So of course we are very happy whatever has happened to us today. Thank you. Thank you so much. वो आपको 18 कंटेस्टेंट थे आपके और ये सीजन भी खत्म हो गया और कितनी Yeah. खुशी है इस बार? See, all contestants, they are enjoyed a lot. 3 days they are under observation and they are very punctual. Even they learn so many things, it's from this pageant. And now they are very happy and we are also happy. This is the hard task. This is not an easy task to handle each and everything. But we made it, and with us there is a last pageant winner. Her name is Shreya Para. So I will say, Shreya, you can say about the pageant. So basically, it is a best platform to show your talent, to groom yourself and show what you have in yourself. Because there's something hidden inside you which comes out if people just push you. So जब तक वो एक पुश नहीं मिलता ना, तब तक वो हिडन ही रहता है एंड पीपल आर लाइक नहीं यार मुझसे नहीं हो पाएगा. बट स्मृति मैम एंड शेखर सर, दे हैव done so much for these girls. Like they have given them the push, they have given them this platform, and they have just told them ki jao, this is your area, like this is your field and just go and nail it. And I think the girls, they have shown so much of transformation. Even in my season we had so much fun, and apart from that we get to learn so many things. We groom ourselves. We are a different personality. Like we go inside with one trait and come out with so many things. So that's the best part about these pageants. They make you a confident person, because I have changed myself after these days and like after winning this pageant, and I think I have come out as a more confident woman in the society. So yes, it's a noble work that they both are doing, and a person with such pure heart and soul can only do that. So thank you so much Smruti ma'am and Shekhar sir for doing these things for all these girls and giving them a platform to establish themselves. Thank you so much. पिछले साल आपने पार्टिसिपेट किया है, फाइनलिस्ट हो आप। इस साल आपने क्या She is a winner. हाँ, इस साल आपने क्या ऐसा देखा कि जो कुछ ऐसा लगे कि इनके अंदर कुछ टैलेंट ना हो, कुछ ऐसा भी लगा? नहीं, एक्चुअली कैसे होता है, हर एक लड़की में, वो लड़की हो या कोई भी हो, एवरी ह्यूमन हैज़ दैट हिडन क्वालिटी, और वो बाहर निकालने के लिए ऐसे किसी ना किसी, जैसे हम लोग सोशल इश्यूज़ में भी किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ता है, वैसे इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि सबको एक वो प्लेटफॉर्म देने का, ताकि उनके भी टैलेंट्स बाहर आए, उनको भी ग्रूमिंग मिले जो एक्चुअली पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए हेल्प होता है आगे. तो इनका जो इनिशिएटिव है वो इतना नोबल है कि हर एक सीज़न में हर एक लड़की का उतना ही ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमारे सीज़न में था, जो इनके सीज़न में है.
same transformation. Everybody is more confident. Like when they walk on the ramp, उनके आँखों में से वो confidence झलकता है कि हाँ, they own the stage. It's like that. सर आप अब इनको आगे क्या अभी तो आपने यहाँ तक सपोर्ट कर दिया, आगे कैसे सपोर्ट करने वाले? विनर जो है उनको विनर को कुछ ना कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ये शो देखने के लिए बहुत ही अच्छे प्रोड्यूसर आते हैं बॉलीवुड से, मीडिया से, एडवर्टाइजिंग से, तो कहीं ना कहीं अच्छा उनको प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपने आप को कुछ एक अच्छा प्लेटफॉर्म से आगे फ्यूचर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का, और जो उनकी वो जो सोच है उनकी उनको आगे बढ़ाने का। एंड आई थिंक व्हाट श्रेया she that's right what exactly she said, and I hope the winner will have a good future ahead. इसके बाद जब प्लान क्या है आपका, कोई और शो या इसी का सीजन चालू करने वाले हैं? हमारा अभी नेक्स्ट जो इवेंट आने वाला है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ, मिस एंड मिसेस एशिया पैसिफिक, मिस्टर एंड मिसेस एशिया पैसिफिक, probably in the month of January. Still means we are working for the dates, but it's going to be in the month of January. आप जानना चाहेंगे अगली बार क्या नया होने वाला है? अब तक तो आपने यहाँ पे कर लिया। या वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेस्टेंट को अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म दे, इसकी कोशिश करेंगे। हम लोगों की कोशिश यही रहती है, बिकॉज हम लोगों का NGO है स्वावलंबन एंड कॉज इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। जैसे किचन से कॉरपोरेट तक लेके जाना वुमेंस को, वो हमारी एक हम लोग ये करना चाहते हैं। एंड वी आर ट्राइंग कि जो लेडीज़ लोगों में जो हिडन टैलेंट है उसको बाहर आना चाहिए, तो इसके लिए वी आर वर्किंग ऑन दैट। एंड लाइक यू नो इज़ अ पेजेंट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड। तो मैं हर लेडीज़ लोगों को ये कहना चाहूँगी कि आपके अंदर जो टैलेंट हिडन है, जो आप उसको अभी तक निकाल नहीं पाई हो, जैसे आपके घर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की है, हस्बैंड की है, फैमिली की है, इसमें आपको भी आप थोड़ा टाइम देना चाहिए। और आपका जो है एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक आपका पर्सनल हिडन टैलेंट जो है उसको बाहर निकाल देना चाहिए। एंड ऑल यू आर द क्वीन्स। क्या फीलिंग है? मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे सच में मतलब मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मुझे ये ताज मिल सकता है या फिर मैं विनर बन सकती हूँ। और सच बात तो ये है कि सुबह से मैं बहुत ही नर्वस थी, बहुत ही ऐसी शांत बैठी, सब बोल रहे थे यार चेयर अप चेयर अप चेयर अप, बिकॉज मैं सबको हंसाती थी। आज मैं ही बहुत ही उदास थी, बट आई डोंट नो कैसे हुआ, बट सीरियसली आई रियली हैप्पी, सो हैप्पी। हाँ एकदम मैं तो बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मैं बंगाल से हूँ, कलकत्ता में हूँ, रहती हूँ, तो मुझे बहुत खुश हुआ, बस दैट्स इट। अच्छा, आगे क्या इरादा है आपका? आज तो आपने को ये मिल चुका है, आगे क्या करना है? अगर मौका मिलेगा तो छोड़ूंगी नहीं। आप? बस मुझे भी वही इच्छा है, मौका मिलेगा तो मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ। इस टाइटल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं बहुत सारे वुमेन के लिए और मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हूँ, और मैं इसके आगे मुझे डेफिनेटली विश्वास है कि इस टाइटल से मुझे वो काम करने का मौका मिलेगा। अपनी फ्रेंड्स से उनसे क्या कहने वाली है यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं? यस डेफिनेटली, उन्होंने भी बहुत सारी कोशिश की है, और मैं ये नहीं समझती कि हम ही विनर हुए हैं। ऑफ कोर्स वो भी सबसे बेस्ट विनर है, जो कि उन्होंने जो कोशिश की है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा कलकत्ता से कुछ मेरा दोस्त जो इधर आई, तो मैं जब लौट जाऊँगी तो उसको मैं सब कुछ बोलूँगी जो इधर कितना सब पार्टिसिपेट जो भी है शो, इतना फ्रेंड है, इतना हेल्प भी करता है, तो भी आ जाए वापस इधर। फिल्मों में ट्राई करने वाले? मैं तो बचपन से चाहती थी कि मैं फिल्मों में आऊँ, और मेरी मम्मी की भी इच्छा है, तो अगर मौका मिलता है तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा तो ज़रूर करें। हाँ, मैंने भी मेरा सपना है, मैं फिल्मों भी आई, लेकिन ये बात नहीं है, लेकिन मैं अच्छे से मॉडल बनूँ, वो मेरा सपना थी। तो मैं नहीं जानती पूरा होगा कि नहीं होगा, काश हो जाता तो अच्छा ही होता।
थैंक यू। और साथ में गिफ्ट भी बहुत मिले हैं और फोटोज भी बहुत खींच चुके हैं, तो क्या कहेंगे? बहुत खुश हूँ मैं, बट इसका सारा श्रेय मेरी मॉम डैड को जाता है, क्योंकि आज जो भी हूँ उनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और आपने जैसे लास्ट बार भी पूछा था कि पेरेंट्स को एक मैसेज, जैसे आज मेरे मॉम डैड ने मुझे सपोर्ट किया है, इसलिए मैं आज यहाँ पे हूँ। अब भी आप तो बच्चों को देखोगे अगर आप भी सपोर्ट करोगे तो। सेम क्वेश्चन, रिपीट प्लीज, रिपीट प्लीज। आज किस तरह की खुशी है? कल आप एक्साइटेड? खुशी तो बहुत है, पर मतलब ये सब मम्मी पापा की वजह से है हॉनेस्टली, बिकॉज मम्मी पापा अगर हमें सपोर्ट नहीं करते तो हम यहाँ तक आ ही नहीं पाते। ये तो हमने कर लिया, पर मम्मी पापा का सपोर्ट सबको इम्पोर्टेंट है। सो स्टेज पे खड़े होने वाली फीलिंग बताइए आप, जब आप ऐलान हो रहे थे, जब माइक में लाउंसिंग हो रही थी, अभी कौन लेंगे? कोरियोग्राफर ने ये सब जो बनाया था, तो स्टेज पे का डर उन्होंने हमारा वहीं पे ख़त्म कर दिया था जब हम रिहर्सल करते थे। सो जैसे जयेश पाटिल हमारे कोरियोग्राफर, उन्होंने जिस तरह से सेट किया था ना, और जिस तरह से वो हमको ट्रेन करते थे, द कॉन्फिडेंस तो हमको उनसे ही मिल गया। स्टेज फियर हमारा रिहर्सल में मतलब छू हो गया था। जब रनर पे ऐलान हो रहा था कि अभी ये होने वाली है, इनका नाम आने वाला है, तब क्या डर था दिल में कि मेरा नाम ना आए, आ जाए, क्या दुआएं कर रही थी? ऑनेस्टली स्पीकिंग तो रनर्स में ऐसा था कि नहीं आना चाहिए, बट खुशी है कि यहाँ तक जो हम पहुँचे ना, वो भी हम विनर ही है। अच्छा, आप आगे क्या? अब तक तो यहाँ तक तो आपने, आगे क्या? आगे मोटिवेट करेंगे दूसरों को भी कि हमारा ये क्राउन नेक्स्ट ईयर जीत के बताइए। एक्चुअली जब मुझे क्राउन का ताज लगा सर पे, तो आई थॉट दैट मतलब विनर नहीं रहूँगी मैं, सेकंड रनर वगैरह नहीं हो जाऊँगी, पर या बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, फैशन है, शो है, मॉडलिंग है, डांसिंग है, एक्टिंग है। कौन सा प्लेटफॉर्म पसंद आप करोगी अब आगे जाने के लिए? आपने यहाँ तक तो आप उसके बारे में एक्टिंग एक्चुअली आई एम डन विद एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट और एयरलाइन, बट मैं एक्टिंग और या मॉडलिंग यही चूज़ करूँगी। थैंक यू।